रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? What is this kind of a misleading of the house by honorable members who are श्री प्रमोद तिवारी 0 hour one second. Take your seats. Take your seat. नहीं था. You are not aware. You are not aware. Honorable members. One second. First you take your seat. हैं? What is this? Leader of the House, have you anything to say on this? 1 second. Leader, go to your seat. Leader of the House is speaking. Sir, but go to your seat. First, go to your seat. You should learn some basic manners. Go to your seat. Sir, the House is in order. Sir. when leader of the House spoken in the same status. Because leader of the House does not have control over a position. No. If his members were here, I would have asked him not to speak and allow them. Sir, 1 second. On a point of principle, 1 second. On a point of principle, honorable members, I have indicated on numerous occasions, if a member of Council of States walks into the well of the House, which at the moment, yes, Shri Samirul Islam, Shri Nadim al-Haq, I have to explain and something. Muhammad Abdullah, these three honorable gentlemen Sir, have created chaos in the House. no. Disruption in the House. Disturbance in the House. And I will be constrained. I will be constrained to take a team step. Sir, I want to speak. Sir, Only 3 of you are here. एक मिनट आप बैठो, then again you can come. एक मिनट में बोलने के बाद फिर आप सर I will continue with the agenda. You keep on doing बोलने what के you feel बाद like. आप जो भी एक मिनट No. They must take, everyone has to be on the seat. प्लीज एक मिनट में Everyone on the seat. मेरे लिए एक मिनट दीजिए। Everyone on the seat. हाँ सर, Excellent. Please take your seat. अरे दे आर टेकिंग Take your seat. एक मिनट में बोलते I am sure states are not your seats. सर Take your डोंट seat. थ्रेटन often and often. What is this? आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए. We are members of parliament. आपको गुस्सा आएगा तो मेरे को परेशानी होगी. आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए. एक मिनट Please take your seat. Tiruchiti, you are a senior member. Ask everyone to take seat so that the honorable leader of the opposition can be heard in rapt attention. Please take your seat. I will allow everyone to express views. This is a house for debate, dialogue, discussion, deliberation. Everyone take seat. And let me remind this house, when Srimati Sonia Gandhi made her address, I ensured there was pin drop silence. I want pin drop silence when leader of the opposition speaks, and I equally want pin drop silence when any member speaks. That's the only way we conduct ourselves. So
my prayer to you is, I will allow members to express themselves on two conditions. One, they have to speak from their seat, and number two, the House has to be in order. I hope the House is with me on this point. Now, please listen to Leader of the Opposition in rapt attention. Leader of the Opposition. सर धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो, दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो को बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कई अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स, लीडर के जब मुकाबले में, मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है, आप इसको
विड्रॉ करने के लिए और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं? हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, माननीय सदस्य, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं आभारी हूं सदन का कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को सुना, क्योंकि यह सदन अनंतवाद का एक बहुत बड़ा सभागार है और जब कोई विचार व्यक्त करता है तो विचार सुने जाते हैं। जितनी शांति से प्रतिपक्ष के नेता को सुना, उसी शांति से और शालीनता से अन्य वक्ताओं को भी हमें सुनना चाहिए। अपने आज सदन में संबंधित मंत्री भी हैं, एक बार इनका सुन लें। अगेन साकेत, everyone will get space, but I am sure leader of the opposition has raised some issues, and we at the moment have Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav. Sir. So, सर okay. भूपेंद्र जी, सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। नहीं भूपेंद्र जी, हाउस इज इन ऑर्डर, सो नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाउस इज इन ऑर्डर। श्री तिरुचि शिवा। Sir, I invoke, sir, I draw your attention to rule number 274, sir. 274, sir. The report of any member of the committee may record a minute of dissent on the report of the committee. The report of the committee, together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the houses. Sir, we deviate from that. Please, sir. एक सेकंड. Sir, we One second, Tiruchi. on the base. Let me No, complete. one second. Let me complete, sir. One second. Honorable members, I am myself fully aware. If we examine the rules, Rule 91, presentation of report, there is no discussion. I deviated. One second, Tiruchi ji. I deviated from the procedure, knowing full well that we cannot allow a debate at the level of presentation. But looking to the mood of the House and yielding to expediency that this is a House for positive dialogue, I allow leader of the opposition. So rather than being technical, even the Honorable Minister Bhupendra Yadav wanted to raise a point of order. I am fully alive to the rules. Rule 91 generates a constraint on me, Ram Gopal ji, that at the time of presentation this is not allowed. Finding mood of the House and to ensure that our accountability to the people, हमारा उत्तरदायित्व जनता की तरफ है, सार्थक चर्चा हो, तो इस We विषय seek पर your कुछ कहना protection, चाहिए। sir. Please. Sir, no. We seek your protection. Please. You are the custodian not only of this house, sir. Make your contribution. You are the second highest office in the country, sir. So we work under the constitution as well as set by the rules, as well as the rulings given by the earlier on you, sir, the chairman. But how we deviate from that, sir? Any report whichever is submitted to the House, if a member in the committee is disagreeing with the report, sir, he is allowed to give a dissent note. That should also accompany. All the past reports have accompanied with the dissent. Why that should be deleted and how the chairman is interested with that power, the chairman of that committee, sir. So you have to come to our rescue and protect the rules and the proceedings. I have taken note of it. Functioning of the... Shri Sanjay Singh. Sanjay, you and some members have made a presentation to me. Yes, you and some members have made a presentation to me also. This is receiving my attention. Anything more? सर, आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। इस मैं विषय पर जेपीसी का
मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र सर, श्री भूपेंद्र यादव, first hear the minister. Allow me to 1 second. No, I will allow the honorable minister. Sir, point of. Please. Honorable Minister. सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज Honorable करना। Minister, please. Yes, sir. And look Sir. at me. सर सदन में दो विषय कहे गए हैं। पहला, तिरुचि शिवाजी हमारे सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने रूल 274 कोट किया। 274 रिलेटेड विद द स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमेटी का जो प्रोसीजर है वो रूल 72 से लेकर रूल 90 तक दिया गया, और रूल 72 से लेकर Leader of the House, listen to. Leader of the person. Now I request the leader of opposition Kharge ji, to I need your ensure protection. He is. नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।